میں جب اس کو دیکھ رہا تھا تو چند ایک سوال میرے ذہن میں آ گئے اس فکرے کے پیش نظر. اور وہ فکرہ کیا ہے؟ شاید ریپیٹ کریں گے بار بار ہم اس کو، تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات نقش ہو جائے. اور وہ کیا ہے؟ ہم اپنے، یا تم اپنے نہیں، تم اپنے نہیں. تو سوال پہلا آیا تو پھر کس کے ہیں؟ اگر میں اپنا نہیں یا اپنی نہیں تو پھر کدی ہاں؟ جن کی شادی ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑے کریں جو شادی شروع ہے. تو وہ لڑکیاں بیٹیاں کہہ سکتی ہیں تو پھر میں کدی ہوں جب میں اپنی نہیں تھی. یاد نہیں کہہ سکتے پھر میں کدھر. آپ کو یاد ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ کیا اس شادی میں منگنی جب ہو جاتی ہے کیا ہے؟ پالوس کہتا ہے میں نے تمہاری ایک ہی کے ساتھ نسبت کیا. نسبت کا یہی مطلب ہے نا، منگنی کا یہی مطلب ہوتا ہے بس ہونے ریزرو ہو گئی ہے یا ریزرو ہو گیا. اینڈ دیٹس واٹ ہیپنز ود اے بلیور. ایماندار کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے جب وہ توبہ کرتا ہے پھر وہ اپنا نہیں رہتا، کسی ادا ہو جاتا ہے. شادی میں بھی یہی ہوتا ہے نا، کیوں نہیں؟ وکٹوریا ایسا ہی ہوا تھا. آپ نے کہا وہ میری ہوں. ہاں وکٹوریا اکثر مجھے ایک بات بتاتی ہے، جب اسکول شادی سے پہلے جو حاجی پور اسکول ہے سیالکوٹ میں، اس میں پڑھاتی تھی. تو وہ شادی سے پہلے جب منگنی ہوگی تو پھر یہاں آنے سے پہلے انہوں نے پروگرام کیا کچھ کہنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ ہر ایک کوئی فکرہ بنائے گا مقبول کے اور وکٹوریا کے تعلق سے. تو اس کو بھی وکٹوریا کو بھی کہا کہ تم بھی فکرہ بناؤ مقبول کے تعلق سے. تو یہ تو ہنستی رہی آپ کیا فکرہ بنانا ہے. تو جو تھی پرنسپل اس نے کہا کہ یہ کہو مقبول مجھے مقبول ہے. کیسا بنا؟ تو جب میں نے اور آپ نے اپنے خداوند کو قبول کیا، کچھ کہا ہم نے، تیرا ہوں یسوع میں تیرا ہوں. I belong to you from now on. آج سے from this day onward my mind and body and spirit or soul belongs to you. Okay? تو میں نے کہا کہ اس پہ ہم غور کر رہے تھے، کہا کہ تم اپنے نہیں تو پھر کس کے ہیں. یہ کرنتھس کے لوگ اس سے پیشتر کہ ہم اس کی طرف تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہ غور کریں اس کلیسیا کے بارے میں. ان کی بیک گراؤنڈ کیا تھی؟ بت پرست. 6 باب میں اس کی 9-10 آیت میں بڑی ڈیٹیل دی ہے کہ بدکار خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے، اور پھر ایک گناہوں کی لسٹ ہے بڑی. اور رسول ان کو یہ کہتا ہے کہ تم پہلے ایسے ہی تھے، بعض تم میں سے نہیں آندہ پہ سارے تھے سارے. ہاں جی، لیکن ایک بات تو ہے نا، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. چھوٹے بڑے گناہ کیتے تو سارے ہی نہیں، بڑے کیے ہوں یا چھوٹے کیے ہوں، کوئی ایسا تو ہے نہیں. سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، اور جو جان گناہ کرے گی ضرور مرے گی. دیٹ واز اے کنڈیشن. ان کی بھی تھی، ہماری بھی تھی، یا یہودیوں کی، وہ ان کے پیرالل بیان کرتا ہے. لیکن یہ کرنتھس کے لوگ خصوصاً ایسی زندگی گزار رہے تھے. بت پرستی کی بہت سی باتیں میرے سامنے آ رہی تھیں کہ ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے مسیح میں آنے سے پہلے افسیوں کے خط میں بیان کیا گیا ہے. 2 باب اس کی 11 آیت سے وہاں پر کہتا ہے تم مسیح سے ناواقف تھے، خدا کی زندگی سے خارج تھے، اسرائیل سے خارج تھے، خدا کی عہدوں سے ناواقف، اور اس کے بعدوں سے ناواقف تھے، ان میں شامل نہیں تھے تم. ان غیر قوم والوں کو کہتا ہے. تو ہم بھی تو ایسے ہی تھے. پترس کے خط میں بڑی ہولناک پکچر بیان کی گئی مسیح میں آنے سے پہلے. وہ کہتے تو ایس پرس تھے، گناہ میں زندگی گزارتے تھے، لالچ کی زندگی گزارتے تھے. یہ پترس کا خط بیان کر رہا ہے. تو ہر انسان مسیح میں آنے سے پہلے، اس کا ہونے سے پہلے ایسی ہی زندگی گزار رہا تھا. میں بھی ایسا ہی تھا. اس لیے وہ کہتا ہے بعض تم میں سے ایسے ہی تھے. اور جب انہوں نے مسیح کو قبول کر لیا تو پھر بھی دیکھیں، پھر بھی ان کی زندگی میں، اسٹیفن زیادہ شاید جانتے ہوں گے، ان کی زندگی میں بہت بڑے بڑے گناہ تھے. یہ لفظ آیا نا حرام کاری کا گناہ. That was also one of the sins. ان لوگوں کی زندگی میں، اس کلیسیا کی زندگی میں ایماندار کہلاتے ہوئے بھی
in spite of being the believers, मसीह को कबूल करने के बावजूद और फिर इस कलीसिया के अंदर पाक रूह का बपतिस्मा, गैर ज़बानों का बोलना और नबूवत करना बड़ा आम था। लेकिन वो पंजाबी का एक मुहावरा होता, कुछ नहीं बिगड़े। फिर भी इन सारी बातों ने मसीह को कबूल करना भी और गैर ज़बानें बोलना भी, इन्होंने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं, ज़िंदगी नहीं बदली। They were not changed. तो इसलिए पौलुस के उनको याद दहानी कराता है, ओए भाइयों बहनों, तुम अपने नहीं, जैसी जिंदगी गुजारे हो ये उसके मुताबिक नहीं जिसका होने का तुमने दावा किया था। अगर कोई औरत या आदमी शादी के बाद वो जिंदगी ना गुजारे तो क्या ख्याल है? वो जब सारा निकाह के वक्त वादे शादी किए थे उनका क्या असर है? कोई असर है? हाँ, तो ये देखना है। तो उनको याद रहता है कि तुम क्या नहीं, अपने नहीं, ये थे कौन? देखिए जरा हुआ क्या था इनके साथ। पहला बाब उठ के निकाल के 2-3 आयत जो जल्दी से पढ़ सकता है। पहला बाब इसी का, पहला करंथियों पहला बाब, उसकी 2-3 आयत वहाँ पर लिखा है। हाँ जी, खुदा की उस कलीसिया के नाम, जरा ऊंची पढ़ा करो, शाबाश, दिलेरी से। खुदा की उस कलीसिया के नाम जो शाबाश। कुरिन्थस में है, या। यानी उनके नाम जो मसीह यीशु में पाक किए गए और मुकद्दस लोग होने के लिए बुलाए गए। थैंक यू वेरी मच। देखो ना किस लिए बुलाया गया? मुकद्दस पहला है मसीह यीशु में, मसीह यीशु में पाक किए गए हैं। और किस लिए बुलाए गए? टू बी होली, पाक हो जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। उनसे अलग होकर उनसे अलग रहो, अपने आप को अलग करो तो तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे और मैं तुम्हारा खुदा हूँगा। हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी को अलग करना है, अपने आप को पाक करना। दैट्स द पर्पस बीइंग कॉल्ड इनटू क्राइस्ट। मसीह में आने का मकसद किया। 2 लफ्ज़ आए ना यहाँ पर दूसरी आयत में, जो मसीह यीशु में पाक किए गए हैं। और फिर क्या है? मुकद्दस लोग होने के लिए अनदर स्टेप, ये एक और कदम है। बच्चे को आप नहला देते हैं, है ना, तो वो बड़ा फ्रेश लगता है और खुश भी होता है, और हम भी उसको चूमते चाटते रहते हैं ना, क्योंकि बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन आप उसको छोड़ते हैं, फिर वो ऐसे ही ईमानदार की जिंदगी इस दुनिया में है। वी आर लिविंग इन दिस करप्टेड वर्ल्ड। इस नापाक दुनिया में, आप तो यहाँ के माहौल से वाकिफ़ है ना, खूब, जो ज़्यादा देर से हो यहाँ पर। हम सुनते भी हैं, हम तो सुनते हैं, बूढ़े अब जाते ही नहीं कहीं, पता ही नहीं माहौल क्या हो जाए, है ना। लेकिन सुनते तो है ना, कान तो है ना, ज़हन तो है ना कि जाने। तो ये लोग भी थे जो बदल गए। अब लिखा है कि तुम अपने नहीं तो किसके हैं? 3 बात शाबाश। पहले करंथियों 3 बाब उसकी 20 आयत को पढ़िए, ना 23 आयत है, आखिरी आयत, वहाँ पर कुछ लिखा है। सब तुम्हारे हैं और तुम मसीह के हो और मसीह खुदा का है। तुम किसके हो जी? मसीह। आप किसके हो? क्वेश्चन योरसेल्फ, मैं किसका हूँ? मेरी मंगनी कितना हुई सी रूहानी लिहाज से, मैं कह रहा हूँ मेरी मंगनी तो इधर हुई सी, पर लेकिन रूहानी लिहाज से किसके साथ निस्बत हुई? अभी निस्बत हुई है। मसीह के साथ शादी का माहौल कब आना है? जब वो आएगा। क्यों जी? ठीक है जी। अभी ये हमारा पीरियड है अपने आप को अलग रखने का, पाक रखने का। तो यहाँ पर वो कहता है तुम किसके हो? मसीह के हो। और मसीह किसका है? और तुम किसके हो? नहीं, उससे आगे भी क्या लिखा है? तुम खुदा के हो। मसीह खुदा का है, तो जब मैं मसीह का हूँ और मसीह खुदा का, तो मैं किसका हुआ? मैं भी तो खुदा का हुआ। अगर किसी को याद हो, यूहन्ना की इंजील 1 बाब उसकी 12 आयत में क्या लिखा है भला? वहाँ लिखा है जितनों ने, वेरी गुड,
जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का, यानी उन्हें जो उसके बेटे के नाम पर क्या लाते हैं, ईमान लाते हैं। जो ईमान लाते हैं वो क्या हो जाते हैं, उसके फर्जंद, बेटे और बेटियां बन गए। ये जो मत्ती था बाइबल के अंदर ना, आस्तर की किताब याद है, तो जो आस्तर थी उसका चचा था मर्की ने उसको अडॉप्ट किया था, ठीक है जी। तो मर्की की सारी प्रॉपर्टी, जायदाद, मलकियत या बैंक बैलेंस जो भी था वो किसका था, उसकी बेटी तो नहीं थी, लेकिन उसने उसको अडॉप्ट किया। अडॉप्शन भी दो तरह की होती है, एक तो यह है कि हम एक दूसरे को दे दे, लो जी ਤੁਹਾਡੇ को बच्चा नहीं, तुसी साडा बच्चा ले लो, संभालो, है ना, खुशी से दे देते हैं। एक है कानूनी तौर से, लीगली वी टेक दैट चाइल्ड, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। खुदावंद यीशु ने यहाँ पर क्या लिखा है, तुम मसीह के हो और मसीह खुदा का है, और ऊपर क्या लिखा है उससे शुरू की आयत में, सब चीज़ें तुम्हारी हैं। अजीब गल नहीं, खुदा का क्या है भाई, बात कहते हैं ना, हाँ साडा की है, अल्लाह ही अल्लाह, वो कई बार मजाकन भी कहते हैं ना कई लोग, तो जब अल्लाह ही अल्लाह तो क्या मतलब है, एवरीथिंग इज माइन, क्योंकि सब चीज़ें तो खुदा की हैं कि नहीं, किसने बनाया है, सब कुछ खुदा ने बनाया। लिखा है छः दिन में उसी ने सब चीज़ों को बनाया, उसने 6 दिन में सब चीज़ों को बनाया ना, आदमी और कोई बनाया है। तो ये सब चीज़ें उसी की हैं। वो कहता है कि मैं भूखा होता तेरे को ना मांगता, हाँ जी, तेरे बारे से मैं बकरा या छतरा ना लेता, क्योंकि मैं भूखा नहीं। पहाड़ों के सारे जानवर तो मेरे हैं, और परिंदे, हवा के परिंदे मेरे हैं, और समुद्र की सारी मछलियाँ तो मेरी हैं। तो अगर ये उसकी हैं तो आपकी ना हुई, मेरी ना हुई। So it's very important that I should recognize who am I. कई बार ये आम जनरली सवाल नहीं किया जाता कि मैं कौन है जी, मैं कादे वास्ते आया हूँ, कादे वास्ते आई है, मैं की करना है, तो सुन लो कादे वास्ते, आप कौन हो। कभी कभी हमें मालूम नहीं, ईमानदार होते हुए भी हम अपनी हैसियत से, अपनी इम्पोर्टेंस से, अपनी अहमियत से वाकिफ नहीं। नो इट हु यू आर, हाउ इम्पोर्टेंट यू आर। ईसाई की किताब में बनी इसराइल के बारे में खुदा ने कहा था, तू मेरी निगाह में बेशकीमत और मुकर्रम ठहरा, इसलिए मैं तेरे बदले में उम्मतें दे डालूंगा। दे देती हैं कि नहीं उन्हें, वो 7 कौमों को उसने निकाला वहाँ से और अपने लोगों को, बनी इसराइल को दे दी। अच्छा जी, तो मसीह में आने से क्या होगा। नंबर 1, 2 ग्रंथियों, I'm thinking about the time, Stephen. Okay, 2 ग्रंथियों 5 बाब की 17 आयत, याद है किसी को, वहां पर लिखा है अगर कोई मसीह में है तो क्या है, नया मखलूक है। If anyone is in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things become। पुरानी चीजें जाती है, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ है, मेरा की हाल है, पुरानी जिंदगी बड़े में आज लिविंग अकॉर्डिंग टू द ओल्ड लाइफ, दुनिया की रवश पर चल रहे हैं। इफ्सियों के खत में, चूँकि टाइम की बात होती है, इफ्सियों के खत 2 बाब में वहाँ पर वो कहता है, उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबसे क्या थे, मुर्दा थे, क्योंकि उससे पेश से तुम दुनिया की रवश पर चलते थे, जिस्म और अक्ल के इरादे पूरे करते। शायद कई आप भी लाइक दीज पीपल, these believers in current being sons and daughters of God, even being in Christ, नए मखलूक होने के बावजूद वही पुरानी जिंदगी, वही पुरानी डगर, वही पुरानी चाल जो पहले थी अब भी है, चल रही थी इनकी। इसलिए उनको याद दिलाता है, अयो बहनों, बेटियों, बेटो, यू आर नॉट यू। अगर कोई खामन या बीवी गलत राह पर चले तो उसको याद दिलाने की जरूरत ही नहीं है, तेरी शादी हुई, तू उसका है, तू उसकी है।
अगर शादी में हम इस बात का लिहाज रखते हैं तो खुदा के साथ जब हमारी निस्बत हो गई, जब हम उसके हो गए, तो फिर मैं और आप ये ख्याल क्यों न करें कि मैं अब अपना नहीं। तो पहले कुछ बातें मैंने कही, जब हम मसीह हो गए, पहली बात ये हम नए मखलूक हो गए। नए मखलूक होने से क्या हुआ? हम खुदा के फरजंद बन गए। नंबर 2 क्या हुआ? रोमी 8 बाब उसकी पहली आयत के मुताबिक अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, वे यार क्या बरी हो गए। वी आर रिडीम, तुम्हारी खलासी। अच्छा, तो वजह क्या है? वो क्यों कहता है तुम आपने नहीं? यू आर बॉट बाय अ प्राइस। नहीं, तुम्हारी कीमत अदा की गई। और कीमत क्या थी? पहला पत्रस उसका पहला बाब 18 में लिखा है क्या? तुम्हारी खलासी मेरी तो ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ हर ईमानदार की या हर इंसान की कीमत दे दी गई है। ये वही मर्जी होती रहे जहाँ रहना चाहता है। कहते हैं कोई आदमी कुएं में गिर गया तो ऊपर से उन्होंने रस्सी डाली था, मजबूर सी, उन्हें आके फड़ लिया, उन्हें फड़ी ना, उन्हें आके फिर जिथे रहने उठे रहे। That's what God has done. He has sent His Son into this wretched world. Behold the Lamb of God. खुदा का बड़ा तो आ गया है, रस्सी तो उसने डाल दी है। अगर कोई मेरी तरफ देखे तो क्या होगा? He will be saved, redeemed, cleansed, washed. तुम्हारी खलासी फानी चीज़ों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि एक पाक और बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। कई बातें, एक तो ये है कि उस खून ने मुझे और आपको क्या कर दिया? पाक कर दिया, धो दिया है। दूसरी बात ये मुझे बता रहा है कि मेरी कीमत कितनी है, आप कितने वैल्यूएबल हो कि नहीं भाई? इतनी बड़ी कीमत। मसीह की कीमत क्या है? यू कांट टैग इट। आप उसकी कीमत को लगा ही नहीं सकते। वो साढ़े अपने बच्चों की कीमत नहीं को ला सकता। क्यों नहीं? कोई मैंने आखे भी इन्ने लाख रुपया लेते, अपना बड़ा बेटा निकी दे दे, मैं चलो क्यों नहीं? तो खुदा ने क्या कीमत दे दी? अपना इकलौता पिलौठा बेटा उसने दे दिया। देखो, बिहोल, देखो खुदा ने हमसे कैसी मोहब्बत की कि हम उसके फरजान खिलाए। खुदा ने दुनिया से मकबूल से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि मकबूल उस पर ईमान लाए, हलाक ना हो बल्कि हमेशा की क्या है। तो रिमाइंडर है मेरे और आपके लिए। इनको भी वो रिमाइंड करा रहे कि तुम नए मखलूक बने थे, तुमने मसीह को कबूल किया था, तुम उसके पास आ गए हो, तुम्हारी कीमत दे दी गई है। अब ऐसी जिंदगी ना गुजारो जैसे पहले गुजारे थे। चेंज, तब्दील करो अपना माइंडसेट, अपनी पुरानी इंसानियत को उतार कर नई इंसानियत को पहनो और नए तौर पर नई जिंदगी में चलो। क्या करना है? आखिरी जो सवाल है, आखिरी बात जो है वो आखिरी आयत भी है, 20 आयत के आखिर में लिखा है, तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। पास क्या करो भाई? अपने का देना, अपने बदन। ये दूजिया दे छड़े बदन। अगर मैं अपने गुनाहों में जिंदगी गुजारा अपने बदन के वसीले, अपनी जुबान, अपने हाथ, अपने पाँव गलत कामों में इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये बदन खुदावन के लिए तो नहीं। इसीलिए पौलुस रोमियो 12 में कहता है अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए क्या करो? नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को क्या ख्याल है? अगर मैं और आप जैसे आप बैठे हुए हैं, अगर ऐसी जिंदगी क्या ख्याल है? तो मुझे पसंद होगा। मुझे नहीं पता आपकी जिंदगी कैसी, मैं कौन हूँ? हाँ जी, मुझे खुद होया तो नहीं होती कि फलां ये कर रहा है वो कर रहा है। आई एम जस्ट आस्किंग। आप मुझसे कह सकते हो, मैं अपने आप को जान सकता हूँ कि क्या जैसा मैं अब हूँ ये खुदा के लायक है। क्या इससे मैं जाहिर कर रहा हूँ कि मैं खुदा का हूँ, मैं मसीह का हूँ? अगर नहीं तो फिर क्या करना है? हमें अपने बदन खुदा में हाथ पौलुस के साथ फिर मुझे और आपको कहना है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ। No more I live but Christ lives in me.
تو جب آپ اس کے ہو گئے، میں اس کا ہو گیا، تو پھر اب اپنے لیے زندگی نہیں گزارتے. We don't live for ourselves, to please myself, to meet my desires and longings, what I want. پھر ہم دنیا کے مطابق نہیں زندگی گزاریں گے. اور اگر ہم اتنے لوگوں کی تہیا کر لیں، آج سے مقبول اپنا نہیں ہوگا. I will be living for my God who paid such a great price to buy me, to make me his own. اور اس نے ایویں بلا کے چھڑ نہیں دیتا کدے جنگل سے. He has brought me, he has bought me, he has brought me and made a great promises. سب چیزیں تمہاری ہیں کیونکہ تم مسیح کے اور مسیح میرا پیارا بیٹا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے جب ہم بیٹے ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث. سوچا کبھی، دھیان دیا ان باتوں پہ کبھی کہ چائیں بن گئے بھائی تو نہ کوئی گل سمجھی. ہم شوق سے شاید ایماندار تو بن گئے. جذباتی طور پر اسٹیفن نے اس نے پیغام دیا تھا نا، وہ بیچ کے تعلق سے، تو پہلا بیچ کہاں گرا تھا؟ راہ کے کنارے. لیکن دوسرا پتھریلی زمین میں شوق بڑا. بہت سے لوگ شوق سے آتے ہیں لیکن قائم نہیں رہتے. اس طرح جھاڑنے والا بیج، لیکن آخر میں اچھی زمین میں جو گرا، اس میں بھی 3 کیٹیگریز ہیں کہ نہیں؟ 3 کیٹیگری ہیں، ہے نا؟ 30 گنا، 60 گنا. لیکن بڑی بات کہ آج سامنے جو ہمارا خیال ہے، تم اپنے میں ہیں. اپنے آپ سے میں اور آپ بھی کہیں مقبول تو اپنا نہیں ہے، یہ اور کہا تو مسیح کا ہے جس نے اپنے آپ کو درجے بلیدان کر دیا. میں چھوڑ کر خاص جگہ زمین پر آیا تھا، ہوا غریب تنہا، صدمہ اٹھایا تھا، یوں میں نے چھوڑا سب. کیا چھوڑتا ہے تو کاش کے خدا میرے اور آپ کے اندر ایسی ہی تاثیر ڈالے گا جیسے پالوس کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں. There's a great hope. سب چیزیں تمہاری ہیں. تم مسیح کا، تو مسیح کا کیا ہے؟ وہ مسیح کہاں بیٹھا ہے؟ تخت پر نہیں بیٹھا. تو اگر وہ بیٹھا ہے تو آپ بھی بیٹھیں گے کہ نہیں؟ ہاں، اللہ کرے کہ آج میں اور آپ اس سوال پر یا اس فکر پر غور کر سکیں. تم اپنے نہیں، ہر اپنے آپ سے سوال کرے، اپنا نام لے کے، میں اپنا نہیں، میں اپنی نہیں، میں مسیح کی ہوں اور آج سے میں مسیح کے لیے زندگی گزاروں گا اور زندہ رہوں گا. آمین. God bless you. Thank you.